آج میں جنات کا غلام قسط نمبر 1 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ ایک صحافی کی کہانی ہے جس نے 20 دن جنات کی غلامی میں گزارے۔ بہت ہی دلچسپ داستان ہے، اس کو مکمل سنیے گا۔ ایپیسوڈ کی شروعات سے پہلے آپ سب دوستوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ چینل پہ حمزات کا ناول موجود ہے، لیکن یہ وہ ناول تھا جو آن لائن اویلیبل ہے۔ مجھے کچھ دوستوں نے بتایا کہ وہ شارٹ ورژن ہے فل ناول کا، تو میں نے وہ ناول بک شاپ سے بائی کر لیا، اور کچھ دیر مطالعے کے بعد میں نے بھی یہی ریئلائز کیا کہ جو ناول میں نے اپلوڈ کیا اس میں کافی ڈیٹیل مسنگ ہے، بٹ سٹوری تھیم وہی ہے۔ اگر حمزات کا ناول دوبارہ اپلوڈ کرتا ہوں تو اس کی 2 ریزن ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 کہ اب حمزات کا ناول فل ورژن ہوگا۔ نمبر 2 جو ناول پہلے چینل پہ اویلیبل ہے اس کی سٹارٹنگ کی ایپیسوڈ میں آواز بہت خراب ہے۔ اب آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ حمزات ایک دلچسپ داستان فل ورژن اپلوڈ ہونا چاہیے یا نہیں۔ آئیے اب ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ صرف 2 رتی افیون حاصل کرنے کے لیے اس قدر خوار ہونا پڑے گا، یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا، اور اب مجھے اس عذاب سے جان چھڑانے اور فرار کا کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اس تپتی دوپہر میں نہر کنارے موٹر سائیکل دوڑاتے ہوئے میں سوچ رہا تھا، یہ لالو کسائی میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس کی آوارگی سے میں سخت عاجز آ چکا تھا۔ 3 بار مشکوک انسان سمجھ کر پولیس نے ہمیں روکا تھا، مگر میرے تعارف کرانے پر وہ چھوڑ دیتے تھے اور ہم افیون کی خاطر ایک نئے گاؤں کی طرف جا نکلتے تھے۔ نہر کے سفیل سے ایک کوس پہلے جب لالو کسائی نے مجھے ملیاں گاؤں کی طرف موٹر سائیکل کا رخ موڑنے کی ہدایت کی تو میں گھبرا گیا اور موٹر سائیکل روک دی۔ ملیاں منشیات فروشوں کا گڑھ تھا۔ اپنی حیثیت کو برقرار رکھنے کی خاطر میں نے اپنے خوف کو دبا لیا اور سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، لالو اب ملیاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے 2 رتی افیون لینی ہے، اور اس کے لیے تم نے مجھے 12 گاؤں گھما دیے ہیں۔ ہر بار تو یہی کہتا ہے کہ ہمارا کام فلاں گاؤں میں ہو جائے گا۔ چودھری صاحب غصہ نہ کریں، میں بھی خوار ہو رہا ہوں۔ میں نے آج میلے سے جانور لینے جانا تھا، کل گوشت کے لیے ایک بھی جانور نہیں ہے میرے پاس، لیکن میں صرف آپ کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ پی رہا ہوں۔ لالو کام تو مجھے بھی بہت ہے، صبح میرا انگریزی کا پرچہ ہے، لیکن ایک دکھی عورت کی خاطر یہ نیکی کرنے نکلا ہوں۔ تو جانتا ہے پوری پٹی پر پولیس نے ناکے لگا رکھے ہیں، اگر میں صحافی نہ ہوتا تو یقیناً وہ ہمیں پکڑ لیتے۔ لالو کسائی کی چندھیائی ہوئی آنکھوں میں ایک لمحہ کے لیے عجیب سی چمک آئی اور وہ بولا، پولیس نے آپ سے متھا لگا کر مرنا ہے جی؟ ویسے بھی یہ راجو ڈوگر کا علاقہ ہے، اس نے تھانے خریدے ہوئے ہیں، آپ تو ویسے ہی ڈر رہے ہیں۔ چلے مجھے یقین ہے ملیا میں ہمارا کام ہو جائے گا۔ ٹھگنے قد کا مالک یا لالو کسائی میرے دوست کے گاؤں ملک وال کا رہنے والا تھا، عام سی شخصیت کا روکھا سوکھا نوجوان تھا۔ گاؤں میں بڑے گوشت کی ایک ہی دکان تھی جو لالو کسائی کے باپ دادا کے وقتوں سے چلی آ رہی تھی، اور اب لالو اپنے آباء و اجداد کی گدی سنبھالے ہوئے تھا۔ میں اس وقت تک اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا، لیکن جب اس کا گھنونا کردار مجھ پر عیاں ہوا تو اس مسکین صورت کے پیچھے ایک چال باز مکار اور انتہائی بدگو شخص چھپا ہوا نکلا۔ اگلی صبح میرا BA کا انگریزی کا پرچہ تھا، مگر اپنے ابا جی کی خاطر میں اس شرمناک مہم پر نکلا تھا۔ مجھ پر سالانہ امتحان کا خوف بھی طاری تھا، اور اس پر مستزاد کہ مجھ جیسا شخص جس نے صحافت کو ایک مشن سمجھ کر اختیار کیا تھا اور جو ہمیشہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف اپنا قلم استعمال کرتا تھا، خود ایک گھنونے فعل کے ارتکاب پر مجبور تھا۔ مجھے ڈر تھا لالو کسائی نے مجھے افیون دے دی اور پولیس نے ناکے پر تلاشی کے بعد برآمد کر لی تو میرا کیا بنے گا؟ عزت نفس اور خاندانی عزت و وقار کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دینے والے ایک نوجوان کے لیے اس سے بڑی تہمت اور بدنامی کیا ہو سکتی تھی کہ وہ افیون رکھنے کے جرم میں پکڑا گیا تھا۔ ایک ایسا نوجوان جس نے غلطی سے بھی سگریٹ نہ پیا ہو، اس پر افیون نوشی کا الزام عام سی بات نہیں ہوتی۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر میں اس الزام میں پکڑا گیا تو والد صاحب سے خوب جوتے پڑیں گے، وہ تو مجھے پولیس سے ہرگز نہیں بچائیں گے اور اپنا غصہ گھر کے دوسرے افراد پر بھی نکالیں گے کہ یہ تم لوگوں کی وجہ سے ملک وال پڑھنے گیا تھا اور اب اس کی کرتوت دیکھ لو۔ میں نے بارہا دل میں یہ دعا کی کہ یا الہی مجھے افیون نہ ہی ملے تو اچھا ہے، لیکن جس بزرگ ہستی سے میں وعدہ کر کے آیا تھا ان کے سامنے بھی مجھے انکار کرنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ اپنے اوپر مجھے یقین تھا کہ افیون نہ بھی ملی تو میری یہ کوشش بھی مجھے بابا جی کی نظروں میں سرخرو کر دے گی کہ میں نے ان کے کہنے پر یہ تک و دو تو کی۔ ملیاں سے ایک کوس پہلے لالو کسائی نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ بادشاہ رکو رکو۔ اب کیا ہوا ہے؟ میں نے فٹافٹ بریک لگائی۔ اس کچے پر موٹر سائیکل اتاریں۔ اس نے سرگنڈوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ راستہ تو مکھن سائیں کے آستانے کی طرف جاتا ہے۔
मलिया के लिए यहाँ से कोई रास्ता नहीं जाता। मैंने कहा, बादशाहू, मैंने सोचा है मक्खन साई की ज़ियारत करते चलें। सरकार के इलाके में आया हूँ तो उनके दर्शन किए बगैर कैसे आगे जा सकता हूँ। लालू कसाई सरफरोशाना अंदाज में बोला, सरकार को पता चल जाएगा कि लालू इधर से गुजरा है, वो नाराज होंगे। यार तू मुसीबत बन गया है। मैंने तुझे कहा था कि मेरा काम जल्दी कर दे, मगर 3 घंटे से तू मुझे कभी एक गांव कभी नहर के किनारे लिए भाग रहा है। अब तुझे मक्खन साई की ज़ियारत तंग करने लगी है। मैंने झिलाते हुए कहा और मोटरसाइकिल खड़ी करके नीचे उतर गया और कहा, तू अकेला ही ज़ियारत के लिए चला जा, मैं भंगियों और चर्चियों के इलाके में नहीं जा सकता। लानत भेजता हूँ मैं इस खिदमत पर। मैं जा रहा हूँ। मैंने फौरन फैसला किया कि बाबा जी से माफी मांग लूंगा कि मैं अफीम नहीं ला सका, मगर इस तरह मंशियात फरोशों के इलाके में खबार होते फिरना अब मुझे गवारा ना था। मैंने जो ही मोटरसाइकिल स्टार्ट की तो लालू कसाई उचक कर पीछे बैठ गया। जैसी आपकी मर्जी जनाब, आपको नाराज थोड़ा करना है। अभी मैंने गियर लगाया ही था कि झुंड के पार से किसी ने नारा मस्ताना बुलंद किया, हक सरकार या मदद मक्खन साई सरकार। मैंने चौंक कर उधर देखा तो 2 हट्टे कट्टे मलंग किस्म के नौजवान मक्खन साई के साथ हमारी तरफ आते दिखाई दिए। सरकार आ गए। लालू अफरा तफरी से मोटरसाइकिल से उतरा तो उसकी शलवार का पांचा मोटरसाइकिल के पायदान में फंस गया और वो चकरा कर नीचे गिरा, लेकिन अपने पीर की अकीदत का मारा बरक रफ्तारी से उठा और मेरे सरकार, मेरे साईं बाबा, मैं आपकी तरफ ही आ रहा था, कहता हुआ लालू कसाई उसके कदमों में जा गिरा। इस दौरान मक्खन साई खासा करीब आ चुका था। पीरो मुर्शिद के मिलने मिलाने का मंजर देखते हुए मैं मक्खन साई की ज़ियारत से भी मुस्तफीद हो रहा था। 6 फुट कद, कोहरा बदन, तेल में गूंदी लंबी लंबी लिटें, स्याह चोगे में मलबूस, पैरों से नंगा, दोनों हाथों में अकीक यमनी, नीलम और जुमर्द की अंगूठियां, कलाइयों में फौलादी कड़े, गले में मोटे दानों की लंबी सी माला, गहरी आंखें, कहरो कताल की सरखियां लिए हुए, काली दाढ़ी, दहाना खुला, दांत स्याही माहिल, चौड़े नथने। मक्खन साई का ये सरापा अपने सामने देखकर मैं एक बार तो नजरें झपकाना भूल गया। उसकी शख्सियत में भरपूर वजदानी तासुर था। इसकी आंखों में देखते और सरापे का जायजा लेते हुए उसके सामने ख्वामखा मौदूब हो जाना एक आम सी बात थी। उसके पास से काफूर की खुशबू आती थी। मैंने सुन रखा था कि उसके आस्थाने या डेरे पर भंगी और चरसी पड़े रहते हैं और उसकी करामात का ढंडोरा पीटते नहीं थकते। पुलिस उसके मुरीदों पर हाथ नहीं डालती थी और नशेई किस्म के गदागर उसका नाम लेकर जिस दर पर पहुंचते बदअकीदा लोग इन्हें खाली वापस नहीं भेजते थे। सुना था कि किसी ने उसके फकीर के साथ बदतमीजी की और उस पर अजाब आ गया। ये सच्चाई थी या नहीं, मगर उसका सहारा लेकर मक्खन साई के फकीर सारे इलाके में फैले हुए थे। इसका नतीजा ये निकला कि कमजोर, गरीब और वहम परस्ती के शिकार फारिगुल बाल नौजवान उससे उम्मीदें वाबस्ता करने लगे और अपने घरों से फरार होकर उसके डेरे पर बैठकर नशा करते रहते। उनके घर वाले अपने बच्चों की बर्बादियों का रोना रोते। अखबारात में खबरें शाया होती कि नहर और बैले का सारा इलाका एक तरफ राजू डोगर और दूसरी तरफ मक्खन साई की वजह से मंशियात का गढ़ बन चुका है, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल की सेहतमंदाना सरगर्मियां मफकूद हो चुकी हैं और वो मंशियात में गर्क रहने लगे हैं। मक्खन साई पर इल्जामात तो आते थे, मगर आज तक उसके इलाके में चोरी, डाके या किसी कत्ल वगैरह की वारदात नहीं हुई थी। इसके मुरीद इसको अपनी मुर्शिद की करामत और दबदबा करार देते थे। उसके इलाके से कुछ ही दूर नहर की पटरी पर दिन दहाड़े लोग लूट लिए जाते और कई को मारकर नहर में फेंक दिया जाता था। राह जनी, लूट मार और मंशियात की वजह से ही पुलिस ने यहाँ पर नाके लगा रखे थे। पिछले साल इंतजामिया ने मक्खन साई के खिलाफ एक्शन भी लिया था, मगर एक वाक़या ऐसा रूनुमा हुआ कि उसके बाद पुलिस ने मक्खन साई के आस्थाने का रास्ता देखना ही छोड़ दिया था। हुआ यूं था, पुलिस जब उसके आस्थाने पर पहुंची तो मक्खन साई 10 फुट गहरी कब्र में चिल्ला काट रहा था। उसके मुरीद कब्र के गिर्द बैठे भंग कूट रहे थे, कुछ तो चर्च के सिगरेट पी रहे थे। वो पुलिस को देखते ही मोजज़बाना अंदाज में नारे लगाने लगे, ओए आज सरकार से सरकार मिलने आई है। पुलिस इंस्पेक्टर ने इनके नारों पर इन्हें डांटा और निहायत सख्ती से पेश आया। तमाम मलंगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इंस्पेक्टर पीरों, फकीरों और रूहानी मामलात को खाते में नहीं लाता था। उसने पूछा, ओए मक्खन साई कहाँ है? माई बाप, सरकार तो सो रहे हैं। एक मलंग जो गालिबन दूसरे मलंगों का कायद था, उसने बताया। किधर सो रहा है, अंदर है क्या? इंस्पेक्टर ने पूछा तो मलंग बोला, सरकार मक्खन साई बिस्तर पर नहीं सोते, वो तो जमीन के अंदर सोते हैं। ओए बक ना कर, सीधी तरह बता किधर है तुम्हारा मक्खन, आज मैं इसमें से बाल निकाल दूंगा, चर्सी कहीं का।
सरकार, हमारे मुर्शिद की शान में गुस्ताखी ना करें वरना अच्छा नहीं होगा। एक बांका किस्म का मजजूब इंस्पेक्टर को आंखें दिखाने लगा। ओए तू, इंस्पेक्टर ने उसे गाली दी और छड़ी से उसकी पिटाई शुरू कर दी। मलंग इसकी मार सहता रहा और उसने एक बार भी उफ ना की और बोला, मेरी बोटी बोटी कर दो बेशक, ये मार तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। मलंग का जवाब सुनकर इंस्पेक्टर के अलावा दूसरे सिपाहियों ने भी उसकी धुलाई करना शुरू कर दी, मगर वो बांका मजजूब दिलेरी से मार सहता रहा। भला आखिर हार इंस्पेक्टर का ही मुकद्दर ठहरी। थक हार कर हाँफते हुए उसने सिपाहियों से कहा कि मक्खन पीर को तलाश करो। उस पर मार खाने वाला मलंग बोला, मेरे सरकार तो उधर उस महल में सो रहे हैं, तुम इन्हें कहाँ ढूंढते फिरोगे थानेदार जी। उसने कब्र की तरफ इशारा किया तो इसका इस्तेज़ाइया लहजा इंस्पेक्टर को तैश दिलाने लगा और वो बोला, मर गया है मक्खन साईं, बताते क्यों नहीं, मर गया है क्या, कब मरा है ये। थानेदार जी, मरे हमारे दुश्मन, सरकार तो अंदर चिल्ला काट रहे हैं और आपकी सारी हरकतें देख रहे हैं। चिल्ला काट रहा है, क्या मतलब, इस कब्र में? कब से है कब्र में? इंस्पेक्टर गुस्सा और हैरत की मिलीजुली कैफियत के साथ पूछने लगा। सरकार को आज 30वां रोज है, 40 रोज तक इन्हें इस कब्र में रहना है और पढ़ाई करनी है। एक मोतबर मलंग बोला, अगर सरकार 40 रोज से पहले बाहर आ गए तो क्यामत आ जाएगी। कैसी क्यामत ओए? इंस्पेक्टर ने दांत पीसते हुए छड़ी मलंग के दांतों पर रखते हुए दुबाई। बकवास बंद करो और इसे बाहर निकालो। ना सरकार ना, हमारी खाल उतार दो बेशक, पर हम ये गुनाह नहीं करेंगे। ओए कैसा गुनाह चर्सियो, ना नमाज ना रोजा, नशे में हर वक्त गरक रहते हो, खुदा रसूल की तालीमात पर अमल नहीं करते और अपने बेअमल मुर्शिद की अज़ाब से डरते हो। चलो और कब्र से बाहर निकालो अपने मुर्शिद को। एक बारिश हवालदार ने इन्हें लताड़ा। जनाब खुदा का खौफ करो, हमारे मुर्शिद बड़ी पहुंची हुई हस्ती हैं, इनकी शान में। बकवास बंद करो ओए गुस्ताखी के पुत्र। इंस्पेक्टर दौड़ा और सिपाहियों से कहा, चलो तुम कब्र खोदो। सिपाही आस्ताने के अंदर कब्र को खोदने लगे तो मलंग दहाइयां देने लगे। इंस्पेक्टर ने इनके साथ मिट्टी हटाई तो नीचे 2 बड़े बड़े तख्ते रखे हुए थे, वो भी हटाए गए तो काफूर की बेतहाशा खुशबू का झोंका बाहर को निकला। अंदर मक्खन साईं चत लेटा हुआ था, उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। मोटे दानों की तस्बीह उसके हाथों में थी। वो आंखें बंद किए लेटा था। पैरों में मोतिये के ताज़ा फूलों का हार था। पास ही पानी से भरा एक घड़ा, प्याला और चंद सूखी रोटियां रखी हुई थीं। घड़ा 10 फुट गहरा था। उस वक्त तक ज़वाल का वक्त हो रहा था। रोशनी इतनी थी कि कब्र में रखी हर शय वाज़ह नजर आ रही थी। इंस्पेक्टर और सिपाहियों ने जब कब्र में मक्खन साईं को इंतहाई सुकून के साथ लेटे हुए पाया तो कदरे परेशान हो गए। इन्हें यकीन न आया कि 30 रोज से कब्र में बंद एक शख्स इतना तरोताज़ा भी हो सकता है। कब्र की गर्मी तो मुर्दे को एक ही दिन में पिघला कर रख देती है, और फिर एक जिंदा इंसान का 30 रोज तक कब्र में लेट कर पढ़ाई करना नाकाबिले फहम बात थी। इंस्पेक्टर और सिपाहियों का एतमाद बुरी तरह जगमगाने लगा। कुछ लम्हे तक वह मक्खन साईं की तरफ देखता रहा और फिर अपने अंदर के सख्त इंसान को बेदार करके बोला, मक्खन साईं बाहर निकलो। उसकी आवाज का मक्खन साईं पर कोई असर ना हुआ तो इंस्पेक्टर ने 2-3 बार इसे आवाज दी। इस पर भी उसने कोई हरकत ना की। मौलवी तुम नीचे उतरो और इसे उठाओ, इंस्पेक्टर ने बारिश हवालदार से कहा। पहले तो उसने अजीब खौफज़दा नजरों से इंस्पेक्टर की तरफ देखा, फिर उसको इंस्पेक्टर का हुक्म मानना ही पड़ा और वो कब्र के किनारों पर हाथ रखते हुए नीचे को कूद गया। तो उसी लम्हा मक्खन साईं के आस्ताने के बरकत के दरख्त पर हलचल मच गई। सबने खौफज़दा होकर ऊपर देखा। अनगिनत परिंदे बरकत के दरख्त के ऊपर से उड़े और बेकरारी से चहकते हुए बरकत का तवाफ करने लगे। मक्खन शाह की कब्र इसी बरकत के नीचे थी। हवलदार पर परिंदों के शोर से सख्ता तारी हो गया, लिहाजा जब उसने मक्खन पीर को पांव से हिलाकर जगाना चाहा तो उसके अंदाज में कदरे नरमी और मरूबियत आ चुकी थी। उसकी नजरें मक्खन साईं के चेहरे पर थीं, जिस पर मुस्कान गहरी होती जा रही थी। इसी लम्हा एक अजीब काम हुआ। बरकत से एक सांप सीधा कब्र में लेटे हुए मक्खन साईं के सीने पर आ गिरा और हवलदार की तरफ रुख करके कुंडली मारकर बैठ गया। हवलदार की बहादुरी इतने सारे इत्फाकात देखकर खता हो गई। उसे अपनी जान की पड़ गई और वो बाहर निकलने के लिए उछलने लगा। साहब जी बाहर निकालें, ये सांप। इंस्पेक्टर भी परेशान हो गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने एक सिपाही की मदद से हवलदार को बाहर निकाला। मलंगों ने यह मंजर देखा तो वह अकीदतमंदी के मारे नारे मारने लगे। मार खाने वाला मलंग बोला, थानेदार जी मैंने कहा था हमारे मुर्शिद को तंग न करना। इंस्पेक्टर ने कहर भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और फिर एक सिपाही से डंडा लेकर खुद कब्र में कूद गया। उसने जाते ही मक्खन साईं का पांव पकड़ा और जोर से उठाया।